Assalamu alaikum everyone. This is your course in charge, Dr. Nighat Sarwar. Today I would like to start my another session about course Introduction to Mass Communication. In this session, we will discuss function of mass communication for individual, which is also known as microanalysis. Microanalysis is the function performed by media for individual. The function performed by the mass media for the entire society. This approach is called macroanalysis. This viewpoint focuses on the apparent intention of the mass communicator and emphasizes the purpose inherent in the media content. On the other hand, we could look through a close-up and the individual receiver of the content, the audience, and ask them to report on how they use media. This approach is called microanalysis. Sometimes the end result of these two methods are similar, sometimes they are not similar. Let's begin our analysis by using the close-up lens. In our previous session, we discussed function of mass communication for society. This approach also known as macroanalysis, analysis for the entire society, also known as wide angle lens. But now we are moving from macro to micro analysis. At the individual level, the functional approach is given the general name of the uses and gratification model. This is another name for microanalysis, uses and gratification model. In its simplest form, the uses and gratification model suggests that audience members have certain needs or drives that are satisfied by using both non-media and media sources. This discussion will be concerned more with media-related sources of satisfaction. The actual needs satisfied by the media are called media gratification. Our knowledge of these uses and gratification comes from survey that ask people questions about how they use the media. Basically, microanalysis, which is for the individual, also known as uses and gratification model. What is uses and gratification model? In its simplest form, the uses and gratification model suggests that audience members have certain needs or drives that are satisfied by using both non-media and media sources. Uses and gratification basically is a theory. ठीक है, इसमें हम ये देखते हैं कि ऑडियंस जो है वो किस मीडिया कंटेंट से सेटिस्फैक्शन गेन कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं. ठीक है, वो मीडिया को किस तरह यूज़ करते हैं. बेसिकली हम यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन में ये देख रहे होते हैं. Several researchers have classified the various uses and gratification into 4 categories. ठीक है, तो 4 कैटेगरी दी गई है जिसके तहत हम ये देख रहे होते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं. ठीक है, इसमें हम अप्लाई कर रहे होते हैं यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल. The 4 systems are cognition, diversion, social utility and withdrawal. Now come to first, cognition. Cognition is simple the act of coming to know something.
when a person uses a mass medium to obtain information about something, he or she is using the media in a cognitive way. Clearly, the individual's cognitive use of a medium is directly parallel to the surveillance function at the macro level. मैक्रो एनालिसिस में जो फंक्शन सर्वेलेंस का है उसी पैटर्न पे माइक्रो एनालिसिस इज द पैरेलल. आपको यहाँ पे जो वर्ड मिल रहा है वो है कॉग्निशन. सर्वेलेंस फंक्शन फॉर द होल सोसाइटी एंड द फंक्शन ऑफ कॉग्निशन इज फॉर द इंडिविजुअल. ठीक है, दोनों का सेम फंक्शन है बट एक फंक्शन है फॉर द सोसाइटी एंड कॉग्निशन इज फॉर द इंडिविजुअल. At the individual level, researchers have noted that two different types of cognition functions are performed. One has to do with using the media to keep up with current events, while the other has to do with using the media to learn about things in general or things that relate to a person's general curiosity. कि सर्वेलेंस में भी हम दो तरह से इसको जज कर रहे होते हैं, बीवेयर सर्वेलेंस एंड इंस्ट्रूमेंटल सर्वेलेंस. अगेन उसी पैटर्न पे हम ये कॉग्निशन को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हम कॉग्निशन, ठीक है, क्यों लर्न कर रहे होते हैं चीज़, फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ करंट इवेंट. ठीक है, बाज़ दफ़ा हमें करंट इवेंट से की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं, और समटाइम्स फॉर आवर जनरल क्यूरियोसिटी. तो ये दो डिवीजन है फॉर कॉग्निशन. Several surveys have found that many people give the following reason for using the media. ठीक है, और इस सिलसिले में बहुत सर्वे होते रहते हैं. ठीक है, सर्वे से आप ये देख रहे होते हैं कि लोग मीडिया क्यों यूज़ कर रहे होते हैं. अकॉर्डिंग टू दैट सर्वे, ठीक है, कुछ इसमें हमें आंसर मिले जो आपसे शेयर करना चाहूँगी मैं. Several surveys had found that many people give the following reason for using the media. Number one, I want to keep up with what the government is doing. ठीक है, कुछ लोग इसलिए मीडिया देखते हैं कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी कारकर्दगी है उस पर नज़र रखें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इसलिए मीडिया यूज़ करते हैं. दैट्स वाई ख़बरें और ये टॉक शोज़ वगैरह देख रहे होते हैं. सेकेंड, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड. ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं पूरे दुनिया के बारे में. ठीक है, तो कुछ लोग सर्वे में ये भी कहते हैं कि हम इसलिए मीडिया यूज़ करते हैं ताकि हमें पूरी दुनिया से रिलेटेड न्यूज़ हमारे पास रहे, हमें इंफॉर्मेशन हो. आई वॉन्ट टू नो वॉट पॉलिटिकल लीडर्स आर डूइंग. ठीक है, कुछ सर्वे में ये भी कहा जाता है कि टेलीविज़न इसलिए देखते हैं, टेलीविज़न या मीडिया, एनी मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं हमें उनके बारे में देखना होता है. तो डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जिसके डिफरेंट आंसर्स आते हैं और फिर उसके तहत जजमेंट की जाती है. ठीक है, तो बहुत से लोग टीवी इसलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ बाखबर रहना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड से कि अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, और कुछ लोग सिर्फ पॉलिटिशियन या जो बहुत मेन लीडर्स हैं उनकी कारकर्दगी देखना चाहते हैं. These reasons constitute the current event type of cognitive gratification. At the same time, many people also report the following reason for using the mass media. ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको तीन चीज़ बताई है फॉर गवर्नमेंट. ठीक है, लोग देखना चाहते हैं मीडिया फॉर गवर्नमेंट, फॉर नोइंग अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट द लीडर्स. ठीक है, दिस इज नोन एज द करंट इवेंट टाइप ऑफ कॉग्निशन ग्रेटिफिकेशन. आप ये करंट इवेंट से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको सेटिस्फाई कर रही है. नो, कुछ और सर्वे भी होता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ. At the same time, many people also report the following reason for using mass media. I want to learn how to do things I have never done before. ठीक है, मास मीडिया आप इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखनी होती है जो आपने इससे पहले नहीं किया है. I want to satisfy my curiosity.
कुछ लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहते हैं अबाउट रिलेटेड अबाउट एनी इशू. द मीडिया मेक मी वॉच टू लर्न अबाउट थिंग्स. ठीक है, कुछ लोग मीडिया इसलिए देखना चाहते हैं, इसलिए यूज़ करते हैं. लर्न मोर अबाउट थिंग्स, उनके चीज़ों के बारे में ज़्यादा, ठीक है, जानना होता है, उसके बारे में समझना होता है, इसलिए उनका इंटरेस्ट होता है. कुछ लोग कहते हैं द मीडिया गिव मी आइडियाज़. मीडिया से उनको बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं, ठीक है, मोटिवेशन मिलती है, मीडिया उनको मोटिवेट कर रहा होता है. These statements illustrate the second type of cognition, using the media to satisfy a desire for general knowledge. ठीक है, तो ये वो लोग होते हैं जो अपनी जनरल नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं और वो इसलिए मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स आई हैव नेवर डन बिफोर. ठीक है, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपको इस वक्त स्पेशली सोशल मीडिया में मिलेगी. बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आप घर बैठे सीख रहे होते हैं. ठीक है, ये आपको अपॉर्चुनिटी इससे पहले नहीं थी. बेशुमार ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लेते हैं, आप उसको वो आपकी लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होते हैं. ठीक है, अब आप घर बैठे स्टिचिंग भी सीख रहे हैं, कुकिंग भी सीख रहे हैं, इवन कोर्सेज हो रहे होते हैं, आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ता है. आप घर बैठे मीडिया यूज़ करें और ग्रुप्स ज्वाइन करें और हर चीज़ आपकी जो है सामने आ जाएगी. ठीक है, तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है फॉर कॉग्निशन. ठीक है, ये कॉग्निशन में आपको याद रखिएगा कि एक आप करंट इवेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो समथिंग अबाउट द करंट इवेंट्स, और दूसरा आप अपनी जनरल क्यूरियोसिटी को इन्हांस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया. अब करंट इवेंट्स में आप क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं. करंट इवेंट्स आपको कहाँ मिल रहे होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़ मिल रहे होते हैं. अगर आप रेडियो टेलीविज़न पे फोकस करें तो करंट न्यूज़ से रिलेटेड आपको न्यूज़ मिल रही होती है, करंट इवेंट जिसमें बताए जाते हैं. इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में भी आपको न्यूज़ मिल रही होती है करंट इवेंट से रिलेटेड. न्यूज़पेपर में आपको तो कॉलम्स और एडिटोरियल, ये सारी चीज़ें आपको करंट इवेंट्स के बारे में बता रही होती हैं. इसी तरह टेलीविज़न है आपका, तो उसमें प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जो करंट इवेंट्स पे, ठीक है, ना सिर्फ ये कि आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़, बल्कि उस पर इंटरप्रिटेशन भी आपको मिल रही होती है. ठीक है, जो बेसिक काम है कम्युनिकेशन का, बेसिक फंक्शन है टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट, टू इंटरप्रेट एंड टू एंटरटेन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होती हैं थ्रू मीडिया. ठीक है, तो मीडिया करंट इवेंट सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए कि क्या हुआ है, हमें इस पे मज़ीद, ठीक है, कुछ लोगों के व्यूज़ भी चाहिए होते हैं. तो आपको वो न्यूज़ बहुत ही अच्छी तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स के थ्रू आप तक पहुंच जाते हैं. इसके अलावा आपकी एक जनरल क्यूरियोसिटी भी इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निशन आप लर्न कर रहे होते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आपको मीडिया के थ्रू मिल रही होती हैं और जिससे आपकी सेटिस्फैक्शन होती है. तो ये जो कंटेंट है मीडिया का आपको एज ए इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर रहा होता है. ठीक है, आप अपने लेजर टाइम यहाँ पर आते हैं, स्पेंड करते हैं और आपको एक तरह की यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसको यूज़ करें. ठीक है, इससे सेटिस्फैक्शन हासिल करें. ओके, दिस इज़ अबाउट कॉग्निशन. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ डाइवर्जन. Another basic need of human being is for diversion. Diversion can take many forms. Some of the forms identified by researchers are stimulation. Stimulation means seeking relief from boredom or the routine activity of everyday life. Up diversion is another point related to microanalysis, analysis for individual. इंडिविजुअल किस तरह डाइवर्ट कर रही होती है, इंडिविजुअल किस तरह डाइवर्जन के थ्रू सेटिस्फैक्शन हासिल कर रहे होते हैं. ठीक है, कुछ इस चीज़ें स्टिमुलेट कर रही होती हैं उनको. ठीक है, एक आपकी रूटीन लाइफ से आपको निकाल रही होती हैं, डाइवर्ट कर रही होती हैं आपकी अटेंशन. ठीक है, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि डेली लाइफ में जब हम एक रूटीन में होते हैं तो हमें वो चीज़ें
रूटीन की चीज़ें बहुत जल्द हमें बोर कर देती हैं। ठीक है, तो टेलीविज़न के थ्रू आपको कुछ स्टिमुलेशन मिलती है, ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलती है कुछ ऐसे काम करने की, ठीक है, मोटिवेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ टेलीविज़न अगर आप देखें फॉर यंगस्टर्स, आजकल जो एक है वेट लॉस, आपको वेट लॉस से रिलेटेड कितने प्रोग्राम्स मिलते हैं, ठीक है, आपको वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप ऐसे ही लेजर टाइम में टीवी खोल के बैठ जाते हैं और कुछ ऐसी टिप्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है, कि आपका वो इरादा नहीं भी होता है, तो बिकॉज ऑफ टिप्स और कुछ इतनी मोटिवेशन होती है, ठीक है, हर प्रोग्राम्स में, क्योंकि वो जो होता है सिर्फ होस्ट नहीं होती हैं, बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग शोज़ देख लें, वहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, ठीक है, वो एक्सपर्ट्स आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं और फिर कुछ ऐसे करंट केसेस लाते हैं, फॉर एग्जांपल कि जिन्होंने वेट लॉस किया है रिसेंटली, तो वो ये चीज़ें आपको मोटिवेट कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि आपको डाइवर्ट कर रही होती हैं, ठीक है, आपकी अटेंशन, तो आप मोटिवेशन हासिल करने के लिए, ठीक है, आपको इतनी अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि आप ना चाहते भी वे भी वो काम करते हैं। ठीक है, तो डाइवर्ट कर रही होती है आपकी अटेंशन और आपको मोटिवेट कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन। The second part of diversion, basically diversion के three parts हैं. First is stimulation, second is relaxation and third emotional release. ठीक है, तो पहले हम ये स्टिमुलेशन पे बात कर लेते हैं। ये मैं फिर बता देती हूँ। देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ डाइवर्जन. फर्स्ट इज स्टिमुलेशन, सेकंड रिलैक्सेशन एंड थर्ड इमोशनल रिलीज. कम टू stimulation. Seeking emotional or intellectual stimulation seems to be an inherent motivation in human beings. Psychologists have labeled these activities ludic behaviors. Play, recreation, and other forms of activity that seem to be performed to maintain minimum level of intellectual activity. Many people report that they watch, read, or listen simply to pass the time. The media have taken advantage of this need to avoid boredom in many creative ways. ठीक है, कुछ लोग सिर्फ अपनी लेजर टाइम को किल करने के लिए टेलीविज़न देख रहे होते हैं। लेजर टाइम है उनके पास, तो मीडिया का काम ये है कि ठीक है, उस लेजर टाइम से वो फ़ायदा उठा रहा होता है और उनको कुछ ऐसी एक्टिविटी में इंगेज कर लेता है, ठीक है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं फॉर डूइंग समथिंग. द मीडिया हैव टेकन एडवांटेज ऑफ दिस नीड टू अवॉइड बोर्डम इन मैनी क्रिएटिव वेज. ठीक है, कुछ ऐसी क्रिएटिविटी पे उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एयरलाइंस प्रोवाइड audio and video entertainment during long flights. Supermarkets have grocery carts with video screens that display the latest information. Restaurants and coffee houses have computers or internet on and allow their customers to use it. ठीक है, डिफरेंट आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली इंटरनेट की सहूलत दी जाती है और ये मेंशन भी किया जाता है. ठीक है, आप वहाँ पे जाके भी अपने जो भी काम है, अपना लेजर टाइम है, वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, आपको ये एक सहूलत दी जाती है. ठीक है, ये एक तरह से उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है और जो कस्टमर हैं वो भी सेटिस्फाई होके जानते हैं. Special magazines are distributed only to doctors' waiting room and advertisement can be found on walls and the bags of stall doors in restrooms. ठीक है, आपकी कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे डिफरेंट एड्स होते हैं जो आपकी अटेंशन कैच कर लेते हैं. ठीक है, कॉरिडोर है जहाँ से आप वॉक थ्रू के ज़रिए जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट एड्स होते हैं, तो आपकी वो जो अटेंशन है वो डेफिनेटली वहाँ पे कैच कर लेते हैं और आप चलते चलते कुछ ऐसी चीज़ देख लेते हैं जो आपको मोटिवेट कर रही होती है. So this is the first function of diversion, stimulation. Now come to second, relaxation. Too much stimulation, however, is undesirable.
psychological experiments have indicated that human beings are negatively affected by sensory overload, in which too much information and stimulation are present in the environment. अच्छा, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन भी जो है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, उसका भी नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है। ठीक है, आप ओवरलोड हो जाते हैं और उस ओवरलोड से, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ डिस्कम्फर्ट फील होता है। When faced with sensory overload, people tend to seek relief. तो अगेन वो कुछ ना कुछ रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, वो बहुत ओवरलोड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्टिमुलेशन हो जाती है, मोटिवेशन हो जाती है, उस मोटिवेशन से बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट होता है कि फिर अगेन वो उससे भी रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। द मीडिया आर वन सोर्स ऑफ दिस रिलीज। ठीक है, तो मीडिया फिर उनको एक डिफरेंट तरीके से मीडिया रिलीफ दे रहा होता है। वो किस तरह से होता है? समटाइम्स वॉचिंग और रीडिंग मैगजीन represent a pleasant diversion from the frustration and problem of the everyday life. ठीक है, बाज़ दफ़ा रीडिंग, ठीक है, बुक आप रीड करते हैं, मैगजीन रीड करते हैं, तो उससे भी आप एक रिलैक्सेशन फील करते हैं। The choice of material used for relaxation might not always be apparent from surface content. Some people relax by reading articles about history. Other reads about astronomy or electronic. Still others might relax by listening to classical music. The content is not the defining factor, since any media material might be used for relaxation by some audience members. ठीक है, अब ये रिलैक्सेशन के मूड जो हैं ये वेरी कर रहे होते हैं, ये आप एक जैसे नहीं होते। कुछ लोग किताबें पढ़ के रिलैक्सेशन हासिल कर रहे होते हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। ठीक है, किताबों में भी बाज़ लोग हिस्ट्री की बुक्स पढ़ना चाहते हैं, बाज़ को एस्ट्रोनॉमी से इंटरेस्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट वो जिस तरह की भी कंटेंट में रिलैक्सेशन फील करें वो उस कंटेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाज़ लोग पढ़ने में नहीं होते हैं, बाज़ म्यूज़िक, ठीक है, म्यूज़िक उनको रिलैक्स कर रही होती है। ठीक है, बाज़ लोग सैड होते हैं बाज़ दफ़ा, तो वो सैड म्यूज़िक सुन के वो एक रिलैक्सेशन फील कर रहे होते हैं। ठीक है, बाज़ लोग सैड मूड में इस तरह की क्लासिकल म्यूज़िक भी सुन लेते हैं। ठीक है, तो ये वेरी कर रहा होता है थ्रू पर्सन टू पर्सन कि हर इंसान किस तरह रिलैक्सेशन हासिल करना चाहता है। बट दिस फंक्शन इज़ रियली वर्क्स, ये वर्क करता है, आपको रिलैक्सेशन पहुंचाता है, जिस तरह भी आप जिस मीडिया से भी चाहें। और स्पेशली आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपके हाथ में होता है लैपटॉप, आईपैड, तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंटेंट होते हैं जो आपको रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं। नाउ थर्ड, डाइवर्जन की थर्ड टाइप, फर्स्ट हमने पढ़ ली स्टिमुलेशन, सेकंड रिलैक्सेशन, और थर्ड इज इमोशनल रिलीज। ठीक है, ये डाइवर्ट आपकी बाज़ दफ़ा आपकी जो डाइवर्ट कर रहे होते हैं आपको मीडिया इमोशनली रिलीज। ठीक है, आपको इमोशनली कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते हैं जिससे आपके इमोशन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, बाज़ लोग होता है कि जब वो मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, इस तरह की मूवी जहाँ बहुत सैड मूवी हो, ठीक है, तो उनको लग रहा होता है कि ये ऐसी कैरेक्टर है, ऐसी चीज़ है जो इनके साथ हुई थी, और वो एक इमोशनल रिलीज़। ठीक है, बाज़ लोग रो के उनको इमोशनल रिलीज़ होता है, तो ये इसका भी आपको मौका मिलता है, क्योंकि ड्रामे ऐसे होते हैं जो आप बड़े शौक से देख रहे होते हैं, इमोशनली आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। द फाइनल type of the divergent function is the most complex. On the one hand, the use of media for emotional release is fairly obvious. For instance, the horror movie has had a long history of popularity in every country. People have sat in dark theaters and screamed their lungs out. ठीक है, बाज़ दफ़ा आप हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और हर जगह मशहूर होती हैं ये हॉरर मूवी। ठीक है ना, ये कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ अमेरिका, इंग्लैंड, बल्कि हमारे यहाँ भी देखा जाए ड्रैकुला सॉर्ट ऑफ फिल्म जो होती है, लोग जाते हैं थिएटर में देखते हैं, और एक उसमें एक इमोशनली फियर और इस तरह की चीज़ जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो वो
उनको एक तरह की रिलैक्सेशन, इमोशनल रिलीज मिल रही होती है थ्रू वॉचिंग डिफरेंट मूवी। ठीक है, इसी तरह टाइटैनिक एक मूवी थी जो लोगों ने बहुत ज़्यादा शौक से देखी थी। ठीक है, उसमें भी लोगों की बहुत इंटरेस्ट था, इमोशनली वो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। बाज़ लोगों को उसकी म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अपील करती थी, तो वो बार बार ये फिल्म देखी जाती थी। तो टाइटैनिक एक वर्ल्ड वाइड इसमें एक है पॉपुलैरिटी। उससे क्या होता है, टाइटैनिक बाज़ दफ़ा टू क्राई देयर आइज आउट, लोग रो रहे होते थे, तो इससे भी उनको एक इमोशनली रिलैक्सेशन फील होती है। On the other hand, emotional release can take more forms. One of the big attraction of drama, for example, seem to be that many viewers are comforted by seeing the same people, even fictional people, have troubles greater than their own. Other individuals identify with media heroes and participate in their charms. Such a process enables these people to vent some of the frustrations connected with their everyday life. ठीक है, कुछ ड्रामा ऐसा होता है, ठीक है, उसमें लोग जब देखते हैं, कुछ लोगों को कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, जब उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में इतने ट्रबल हैं, इतने मसले हैं, तो बाज़ दफ़ा जो व्यूअर है, ठीक है, या लिसनर है, उसको लगता है, ठीक है, कि उसका एक इमोशनल रिलीज़ होता है। उसको लगता है कि जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, ठीक है, वो दुनिया में होती हैं, और फिर शायद बाज़ दफ़ा उसको ये भी फील होता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये जो एक कंसेप्ट है कैथारसिस का, ठीक है, वो आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इमोशनल रिलीज वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन टू बी एट्रीब्यूटेड टू मीडिया कंटेंट। Aristotle, in his Poetic, talk about the phenomenon of catharsis, a release of pent-up emotion or energy, occurring as a function of viewing tragic plays. ठीक है, ये एक एरिस्टोटल थिंकर है, ठीक है, अब सबको पता होगा। उसने एक फिनोमेना पेश किया था कैथारसिस। ठीक है, जब हम डिफरेंट कैरेक्टर्स को इस तरह, ठीक है, देखते हैं उन्हीं ट्रबल में, उन्हीं प्रॉब्लम्स में जो आप फेस कर रहे हैं, तो आपकी एक कैथारसिस होती है। ठीक है, आप एक इमोशनली रिलीफ फील कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस catharsis theory. In fact, the catharsis theory has surfaced many times since then, usually in connection with the portrait of television violence. ठीक है, टेलीविज़न पे कुछ ऐसे वायलेंस से रिलेटेड भी प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, जो भी आपको इन द फॉर्म ऑफ कैथारसिस, ठीक है, ड्रामे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रबल उनको मिल रही होती है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, वो रिलेशनशिप पाँच दफ़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, तो आप असल लाइफ में भी उसको जब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एक कैथारसिस हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द फैक्टर ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन को हमने फर्दर इसकी हमने की थी कैटेगरी स्टिमुलेशन, रिलैक्सेशन एंड इमोशनल रिलीज। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज सोशल यूटिलिटी। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ये मीडिया आपको सोशली यूनाइट करता है, आप इससे सोशल यूटिलिटी हासिल करते हैं। Psychologists have also identified a set of social integrative needs, including our need to strengthen our contact with family, friends, and others in society. ठीक है, बिकॉज ऑफ मीडिया आपकी जो है मजबूत होते हैं आपके रिलेशन विद योर फैमिली मेम्बर्स, योर फ्रेंड्स और अदर सोसाइटी, दूसरी सोसाइटी से भी आप एक सोशल यूटिलिटी वाला फैक्टर हासिल कर रहे होते हैं। द सोशल इंटीग्रेटिव नीड seems to spring from the individual's need to affiliate with others. The media function that addresses this need is called social utility, and this usage can take several forms. Social utility गेन करने के, हासिल करने के बहुत सारे फॉर्म्स हैं।
किस तरह आपको सोशल यूटिलिटी मिलती है मीडिया से. हैव यू एवर टॉक विद अ फ्रेंड अबाउट अ टेलीविजन प्रोग्राम? हैव यू एवर डिस्कस्ड अ करंट मूवी और द लेटेस्ट सॉन्ग you download? If so, then you are using the media as conversational currency. Conversational currency is the word, means the media provide a common ground of social conversation, and many people use things that they have read, seen or heard as topic for discussion with others. ठीक है, सोशल यूटिलिटी ठीक है आपको एक ग्राउंड देती है फॉर डिस्कशन. ठीक है, आपको डिस्कशन का एक ग्राउंड देती है जो आप अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अदर मेंबर से, आपके पास एक कॉमन ग्राउंड हो जाता है. ठीक है, आपके पास कुछ ऐसे, फॉर एग्जांपल इसमें जो बताए एग्जांपल दी गई है, हैव यू एवर टॉक विद अ फ्रेंड अबाउट अ टेलीविजन प्रोग्राम. ठीक है, बहुत से ऐसे टेलीविजन प्रोग्राम होते हैं जिसके बारे में आप देखते हैं और फिर फ़ौरन ठीक है आप उस पर अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से ठीक है आप उस पर बात भी कर रहे होते हैं. अब आप फ़ौरन आप सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, फिर आप देख रहे हैं कि फ़ेसबुक पे फ़ौरन कोई एपिसोड आई है, लास्ट एपिसोड आ रही होती है ड्रामों की, और उसके बारे में फिर लोग अपनी अपनी जो है वो दे रहे होते हैं, राय दे रहे होते हैं. ठीक है कि क्या हुआ, वॉट एवर, एंड अच्छा था, एंड बुरा था. तो ये एक आपको सोशली ठीक है आपको एक ग्राउंड मिल जाता है फॉर टॉकिंग. ठीक है, इस तरह आप बात भी कर रहे होते हैं. ठीक है, आपको एक रिलैक्सेशन भी मिल रही होती है और सोशली आप यूनाइट भी होते हैं. ठीक है, तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ हुआ है कन्वर्सेशनल करेंसी, CURRENCY. Please remember its meaning. The media provide a common ground for social conversation, and many people use things that they have read, seen or heard as topic for discussion with others. This is a certain social usefulness in having a large repository of things to talk about, so that no matter where you are, you can strike up a conversation and be fairly sure that the person you are talking is too familiar with the subject. ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट मिल जाता है और आपको पता होता है कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं. ठीक है, आप अपना आपके पास लेजर टाइम है, आप बैठे हैं, आपने अपने प्रोग्राम जो भी आपने देखना था देख लिया और अब उसको शेयर करना चाहते हैं. बेसिकली क्यों हम शेयर करते हैं, ह्यूमन बीइंग आपको पता है सोशल एनिमल हमें कहा गया है. तो आप अपनी खुशी हो, अपनी जो भी आपकी फीलिंग्स हो, आप हमेशा अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं. तो ये आपको एक ग्राउंड मिल जाता है. ठीक है, पहले तो अब तो आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जब से सोशल मीडिया आपके हाथ में आ गया है. आप विद इन अ सेकेंड आप जो है फ़ौरन इस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलिटी का फैक्टर को. ओके, आगे चलते हैं. सोशल यूटिलिटी इज़ अपेरेंट इन अदर इंस्टेंसेस एज वेल. गोइंग टू द मूवी इज़ probably the most common behavior among youngsters. The motion picture theater represents a place where it is socially acceptable to sit with your friend without parental supervision. In fact, many times the actual film is of secondary importance. The social event of going out has the most appeal. Another important point, सोशल यूटिलिटी, आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं और ये कल्चर अब डेफिनेटली हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इन है. अब पहले ज़माने में नहीं होता था, पेरेंट्स की सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी होती थी, बट वक्त के साथ साथ डेफिनेटली हर चीज़ चेंज होती है, सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं. तो आप अपने दोस्तों के साथ जब एक मूवी देखने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप सोशल ठीक है आपको सोशल यूटिलिटी का फैक्टर आप यूज़ करें, आपको सोशली यूनाइट कर रहे हैं. ठीक है, और फिल्म असल ये नहीं होता है कि आप फिल्म आपको आपने वो टाइम ठीक है आपने कोई ऐसा इवेंट होता है, फ्रेंड की आपकी बर्थडे, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो फिल्म तो आपकी सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, बट ये जो आपके साथ मिलके जाना सोशल इवेंट, ठीक है आप जा रहे होते हैं, मॉल्स में जा रहे होते हैं, मिलके बैठ के वो अपना टाइम पास कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ मीडिया. स्पेशली अब हमारी कंट्री में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे मॉल्स हैं जहाँ पे आपको फिल्म हॉल्स मिल रहे होते हैं, बन गए हैं. ठीक है, तो आप वहाँ जाते हैं, शॉपिंग भी कर ली आपने और अपना लेजर टाइम भी
आपने वहाँ पे गुजार लिया विद योर फ्रेंड्स। तो ये बड़ी एक सोशल यूटिलिटी वाला फैक्टर है जो बिकॉज ऑफ मीडिया। ठीक है, अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, अब बहुत सारे आपके पास यहाँ पे न्यूप्लेक्स और इस टाइप की चीज़ें हैं, एट्रियम, और यहाँ जा रहे होते हैं, अगर शायद ये सर्वे किया जाए तो यंगस्टर्स ही यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। अदर पीपल रिपोर्ट दैट दे यूज़ द मीडिया, पर्टिकुलरली television, radio, computer, लैपटॉप एज ए मीन्स टू ओवरकम लोनलीनेस। ठीक है, बाज़ लोग मीडिया इसलिए भी यूज़ करते हैं कि वो तन्हाई का शिकार होते हैं। ठीक है, वो अपनी तन्हाई दूर करने के लिए मीडिया को यूज़ कर रहे होते हैं। तो टेलीविजन सेट represent a voice in the house for people who might otherwise be alone। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप घर में अकेले हों तो आप वैसे ही टेलीविज़न खोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उस तन्हाई को दूर करना होता है, आपके पास कोई नहीं है, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तो आप क्या करते हैं, आप टेलीविज़न खोल देते हैं, तो वो जो साउंड आ रहे होते हैं, प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो वो आपकी लोनलीनेस को कम कर देते हैं। रेडियो कीप्स पीपल कंपनी इन देयर कार। इनफैक्ट some viewers might go so far as to develop feelings of kinship and friendship with media characters। ठीक है, कुछ लोग जो हैं डेली बेसिस पे प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो वो जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक होस्ट होती है, उससे एक फ्रेंडशिप वाला जो है फैक्टर आ जाता है। दिस phenomenon is called a parasocial relationship and there is some evidence that it actually occurs। parasocial relationship, ठीक है, between listeners, viewers and the host of the program। For example, one study that examined parasocial relationship between the audience and the television newscasters found that more than half the people surveyed agreed with the statement, the newscasters are almost like friends you see every day। ठीक है, तो ये पैरा सोशल रिलेशनशिप भी आप डेवलप कर लेते हैं बिकॉज ऑफ मीडिया। और सिर्फ इसमें न्यूज़ कास्टर्स ही नहीं आते हैं, प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं, मॉर्निंग शोज़ होते हैं, मॉर्निंग शोज़ की होस्ट होती हैं, आप उनको लाइव कॉल्स कर रहे होते हैं, ईमेल कर रहे होते हैं, तो आपकी एक पैरा सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, और फिर उस ईमेल की आपको जवाब भी दिया जाता है, ऑन स्पॉट भी देते हैं, बाज़ दफ़ा आपको फीडबैक इमीडिएट भी मिल जाता है, और बाज़ दफ़ा ठीक है आपको उसको मेल के थ्रू भी मिलता है। तो दिस फैक्टर इज रिलेटेड टू सोशल यूटिलिटी, पैरा सोशल रिलेशनशिप। नाउ कम टू withdrawal। At times people use the media to create a barrier between themselves and other people or activity। For example, the media help people avoid certain activity as children are quick to learn। ठीक है, मीडिया क्या कर रहे होते हैं, अब आपको आप कुछ विड्रॉल वाला फैक्टर भी मीडिया से हासिल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मीडिया हेल्प पीपल अवॉइड सर्टेन एक्टिविटी एज चिल्ड्रन आर क्विक टू लर्न। फॉर एग्जाम्पल, इट्स योर टर्न टू लेट द डॉग आउट। आई कांट, आई वॉन्ट टू फिनिश वॉचिंग दिस प्रोग्राम, यू डू इट। ठीक है, दो अफराद के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। इन दिस केस, attending to mass media content was defined as a socially appropriate behavior that should not be interrupted। In this manner, other tasks might be put off or avoided entirely। ठीक है, बाज़ दफ़ा आप अपनी मीडिया में इतने इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि बाज़ दफ़ा तो अब आप लोगों की आवाज़ भी आपके कानों तक नहीं आती है। ठीक है, स्पेशली आप बच्चों को देख लें, जब बच्चों के हाथ में टैब, लैपटॉप, मोबाइल आ जाता है, तो वो जब तक वो कंटेंट उनका ख़त्म ना हो जाए, वो किसी और का एक्टिविटी में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वो टोटली अपने आप को उसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। पीपल ऑल्सो यूज़ द मीडिया टू क्रिएट अ बफर जोन बिटवीन themselves एंड अदर्स। When you are riding a bus or sitting in a public place and do not want to disturb, you bury your head in a book, magazine or newspaper। ठीक है, आपको अगर किसी और से बात ना करनी हो, आप कहीं बस में जा रहे हो या आप ट्रेन में हो या एरोप्लेन में हो, ठीक है, कोई आपसे बात करना चाहे और आपका मूड ना हो, कोई भी वजह हो, तो आप को ये जो मीडिया है इन द फॉर्म ऑफ बुक, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर या आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल, ठीक है, तो वो आपको
इस चीज़ को, ठीक है, हेल्प कर रहा होता है कि आपका बात का मूड नहीं है, तो आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर जाहिर है जो दूसरे लोग होते हैं फिर आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते हैं। If you are on an aeroplane, you might pop in your iPad earbuds and tune everybody out, ठीक है। आपने अपने कान में लगा लिए और आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, ठीक है। तो कोई आपका मूड नहीं है किसी और से बात करने का, तो कोई भी आपको जो है उसमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। Television can perform this same function at home by isolating adults from children, ठीक है। टेलीविज़न, इसमें टेलीविज़न के साथ आप अब ये मीडिया को भी यूज़ कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया है, टैब हो गया, मोबाइल हो गया, तो वो उसमें आप डेफिनेटली बच्चों और बड़ों के दरमियान, ठीक है, ये बड़ी आइसोलेटिंग वाला फैक्टर अब आ गया है कि बच्चे भी और बड़े भी, ठीक है, अपने आप को बिल्कुल उसमें इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि वो बाज़ दफ़ा, ठीक है, ये अगर वो नहीं चाहते हैं कोई काम करना तो वो इसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं। Television can perform this same function at home by isolating adults from children, और फिर ये इसी तरह चिल्ड्रेन जो हैं वो अडल्ट से भी आइसोलेट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मीडिया, ठीक है। इसमें सारा आ जाता है, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, एवरीथिंग। दिस इज़ ऑल अबाउट माइक्रो एनालिसिस विच इज़ फॉर इंडिविजुअल। इसको मैं एक दफ़ा आपको फिर बता देती हूँ। हमने लास्ट क्लास में मैक्रो एनालिसिस पढ़ा था विच इज़ फॉर सोसाइटी। आज का जो हमारा सेशन था इज़ अबाउट माइक्रो एनालिसिस फॉर इंडिविजुअल। इसमें हमने यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल को बेस किया है कि आप ऑडियंस जो हैं, सुनने वाले जो हैं, वो यूजेस एंड ग्रेटिफिकेशन मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं। आप माइक्रो एनालिसिस में इसकी आपने माइक्रो एनालिसिस को फिर हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज़ कॉग्निशन, सेकंड इज़ डाइवर्जन। डाइवर्जन में फिर 3 आपको कैटेगरीज मिलती हैं, स्टिमुलेशन, रिलैक्सेशन एंड इमोशनल रिलीज। देन सोशल यूटिलिटी एंड द लास्ट पॉइंट इज़ विथड्रॉल। दिस इज़ ऑल अबाउट function of mass communication for individual micro analysis। ओके, आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।